अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्लास में मिस हो जाए आज। क्यों? हमें लग रहा था शायद आज नहीं आएंगे आप। जी कल हमने बात की थी टेम्परेचर की। क्या होता है टेम्परेचर? हॉटनेस, the degree of hotness of an object. वो तो बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में है ना। टेक्निकली टेम्परेचर क्या होता है वो बताओ। How cold and hot. We just talked about Measurement of heat. measurement of heat. And what is heat? Hotness. Actually, measurement of heat. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, लेट्स सपोज यू गॉट अ लिक्विड और हमने उसको हीट करना शुरू किया, what is actually happening to the liquid? It is gaining what? Gaining what? Kinetic energy. Kinetic energy. What happens? Sir, I'm not taking class with अच्छा, okay, all right. केमिस्ट्री में बहुत स्वेर शुरू हो गई। मैं क्लास में God bless you, बेटा। रिकॉर्डिंग ले लो, ठीक है? Not this, बेटा। जी, when we are heating something, let's suppose a liquid, what is happening to its particles? If I just talk about this particular particle, this red one, what is going to happen to it? Its speed will increase. Speed means what? Speed increases. Speed. Very interesting. Yes. Do we have any energy which is related to speed? Kinetic energy. It means it is gaining kinetic energy. That's why its speed is increasing. Yes. Okay. Now, what about the other particles? Let's suppose the particle over here and at this point, let's suppose we have A, we have B, we have C, three particles. So all the three will have gained kinetic energy, yes or no, in the liquid when we are heating it. So all the three they gain kinetic energy. So if I just dip a thermometer here, I'll have, let's suppose, a measure of 65 degrees Celsius. What if I just dip the same thermometer here? What will be the reading at this point? Yes. 65 or different? Same? Yes. Same thermometer, same pot, same liquid, dipped at different places. We are going to get same results. Same results, equal results. ठीक है यहाँ तक कि नहीं ठीक? My question is, particle A, B, and C. You think they have same amount of kinetic energy? Do you think they have same Yes, sir. amount of kinetic energy? No. Yes or no? Yes, sir. No. नीचे वाली गिरानी। No. No. ठीक है, वरना evaporation क्यों होती है? सारी ना उड़ जाए एकदम से, वो उस पर डिटेल से बात करें. So these three particles, they don't have the same kinetic energy.
My question with Fatma, Usman, and Khadija. I'm repeating the thing again. Temperature. Yesterday we saw that we discussed that it is the measurement of heat. Heather, let's suppose we have a pot full of liquid. We are heating it. There are three particles in it, A, B, and C. From this heat, source of heat energy, they are gaining kinetic energy. If I take a thermometer here or here, let's suppose the temperature was 65 degrees Celsius. So if we dip thermometer anywhere in this pot, we are going to get the same temperature, Heather. Now, question is, do you think these three particles A, B, and C, they have same amount of kinetic energy? The speed of these particles increases now, so they are gaining kinetic energy. So my question is, do the three particles they have same kinetic energy? Why we are getting the same temperature then? Again, सवाल तो यही है ना फिर. Hakan, you said कि नहीं सर बकरी बकरी है नहीं तो now the question is clear. जी Fatma, waiting for your response. सारे पार्टिकल जो है वो Temperature is the it is not the kinetic energy of the particles. It is the average kinetic energy of the particles. Average kinetic energy of the particles. If we just consider the age of this class, आपकी 15 years, आपकी 16, आपकी 14, मेरी 52, तो सबकी क्या एज जैसी एज है? ये देख रहे हो ए बी सी तीनों की kinetic energy different है. But when we will take the average kinetic energy, that is same throughout. ठीक है? तो temperature is what? Temperature is the average kinetic energy of the particles. So thermometer is measuring, this thermometer is measuring the average kinetic energy of the particles, which is 65 degrees Celsius. You dip thermometer anywhere in this liquid, you will find the same degree of hotness. ठीक है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कितनी का आ रही है? जी अली भट्ट, हमने बस ये अभी तक डिस्कस किया है टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ हीट है, but it is also the average kinetic energy of the particles. Okay, sir. All right जी. So any questions यहाँ तक? Heather, Usman, Khadija. No, sir. All right. समझ आ रहा है सबको? चलो जी. तो हमें पता लग गया what is temperature. Temperature is the degree of hotness or coldness of a degree of an object. Degree means measurement, and it is also the average kinetic energy of the particles. इस container में particles हैं, उनकी average kinetic energy को we call its temperature. Okay. Now we are going to see the instrument which is used to measure temperature. What do we call that? Thermometer. How many different types of thermometers do we have? Two. Which ones? डिजिटल और एक वर्टिकल Yeah, digital और दूसरा वाला कौन से? Mercury in glass tower. Mercury in glass thermometer. So we are going to take the start, and we will discuss the other thermometers as well. All right. So mercury in glass thermometer, we have
ये जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, ये कौन सा थर्मोमीटर? इसका नाम क्या है? डिजिटल नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोस थर्मोमीटर्स व्हिच कंटेन मर्करी इन दैम। जी, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और क्लिनिक जाते हैं, he uses that, or the doctor uses the thermometer. What do we call that thermometer? जी, clinical. और जब आप when your class goes to the lab, so which thermometer do we use in the lab? Laboratory thermometer. We also have other types as alcohol thermometer. We have digital. ये क्या रहते हैं? और इसके अलावा कोई और थर्मोमीटर है? Thermocouple. That is industrial thermometer. आपकी चाय। Thank you very much. Industrial thermometer. ये डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर हैं जिनको हम देखेंगे। डिजिटल आजकल that is this is very much in if you just go to like any place, shopping mall or any bank or any place, so they just take your body temperature with the help of that gun type thermometer, all right? Infrared rays से जब measure करता है। Otherwise इसके अलावा जो बाकी सारे थर्मोमीटर हैं, alcohol, industrial, laboratory, clinical, they all are a part of your syllabus. Have you ever seen a thermometer other than this digital one? Clinical thermometer देखो, laboratory thermometer देखो। अच्छा, ये thermometer, if we just consider glass, mercury in glass thermometer, or I'm just making the laboratory thermometer lab. It has some like digits, some numbers written on it. ठीक है? यहाँ पे करके we have it's printed on it. मैं थोड़ा इधर करके बना रहा हूँ so that you can read it. 0 degrees. यहाँ पे कहीं पे 100 degrees होता तो इसमें -10 भी है और 110 भी है। तो ये हमने इस पे ये प्रिंट कैसे किया होता है? हाउ डू वी फिगर आउट कि यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -10, यहाँ पे 100? हाउ वी हैव डन दैट? This is called calibration of a thermometer. Printing of scale. So how we did that calibration? ये जो numbers होते हैं इसके ऊपर ये कहाँ से आते हैं, कैसे हम इसको determine करते हैं? ठीक है? We are going to look at that. This पहले इसके main parts जो हैं body parts वो आपको बताऊं. I'm just making it with the different colors so that you can clearly see that this heart contains the mercury. Mercury is actually silver in color. I'm just making it with red.
just to make it visible, let's suppose यहाँ तक इसका rise है. I'm just labeling the part of this thermometer, its body with blue marker. So this lower part, this mercury reservoir, where we have the maximum mercury, this part is called bulb. This is the mercury reservoir, which is called bulb. All right. So there is a narrow opening इसके अंदर, जिसमें mercury thread rise करता है. ये जो है ना, ये mercury का ये वाला, we call it, this is called mercury thread भी कहते हैं और stem भी कहते हैं. और thread. ठीक है. स्टेम है, STEM. सॉरी, या थ्रेड. ठीक है. और ये जो नैरो ओपनिंग होती है जिसमें ये मर्करी स्टेम राइज करता है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपके बॉल पॉइंट में एक वो होती है ना बीच में प्लास्टिक का वेरी नैरो पाइप, उसके अंदर इंक होती है. उस स्पेस को जिसमें इंक होती है, व्हाट डू वी कॉल दैट स्पेस? कार्ट्रिज. कार्ट्रिज की जो अंदर इनर स्पेस है जिसमें इंक रखी हुई है, यानी इंक भरी हुई है, यानी इफ आई जस्ट ओपन दिस, इसके अंदर जो ओपनिंग है अंदर वाली इनर डायमीटर की, दैट इज कॉल्ड बोर. दिस ओपनिंग जिसमें मर्करी राइज करेगा, दिस इज कॉल्ड बोर. जब भी ड्रिलिंग करते हैं जमीन के अंदर तो उसको क्या कहते हैं? बोर करते हैं. ऐसे करके पाइप जाता है ना जमीन के अंदर, दिस इज नैरो ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड बोर. अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि हमने ये मार्क्स कैसे लगाएंगे इसके ऊपर? जीरो. It is called lower fixed point. Lower fixed point. यानी ये पॉइंट फिक्स है. कौन सा वाला? लोअर फिक्स पॉइंट. और 100 क्या है? अपर फिक्स पॉइंट. ठीक है बेटा. We have lower fixed point and upper fixed point. और ये हमने लिए हैं water से. The point at which the water freezes, pure water, pure ice, the point at which water freezes, we have considered that as lower fixed point or 0 degree Celsius. ये कोई ऐसा नहीं था कि पहले थर्मामीटर बना, नहीं. हमने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया, एंड वी कॉल दैट पॉइंट एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस. और इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को हमने क्या कंसिडर किया? अपर फिक्स पॉइंट, और उसको हमने नाम दिया 100 डिग्री सेल्सियस. तो इस थर्मोमीटर को वी डिप इनटू अ कंटेनर जिसमें आइसी वाटर था. Water freezes at 0 degrees. ये mixture of ice and water, जिस पॉइंट पे ये मर्करी पहुंचा था उसको हमने मार्क कर लिया. ये पॉइंट मार्क कर लिया. दिस इज कॉल्ड 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस. ये ऊपर डिग्री जरूर आनी. ऑलराइट. सो दिस पॉइंट इज द लोअर फिक्स पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस. फिर हमने इसको हीट करना शुरू किया. और ये बॉयल होना शुरू हुआ. इतना हीट किया कि ये बॉयल हो रहा है. इसमें से ये स्टीम निकल रही. तो यहां तक इसका लेवल पहुंच गया.
ठीक है बेटा, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अपर फिक्स पॉइंट और 100 डिग्री से होती है। दिस इज अपर फिक्स पॉइंट। इस 0 और 100 के बीच में हमने इसको डिवाइड कर दिया इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। दिस लेंथ was divided into 100 equal parts. ओके, सेंटर में क्या आएगा, यहां पर 50 मार्क, यहां पे क्या आएगा 75, शाबाश, यहां पर 25 एंड इसी तरह से हमने और इसको डिवाइड कर दिए स्मॉलर डिविजन्स में। ठीक है बेटा, तो इसमें मेनली क्या थे, दो पॉइंट्स थे, एक लोअर फिक्स पॉइंट, दूसरा अपर फिक्स पॉइंट। ये कहां से मिले हमें, water, we consider water as a standard. Its freezing point is considered lower freezing point and its boiling point is considered upper fixed point, which is 100 degrees Celsius. ठीक हो गया, उन दोनों को मार्क करके 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, थर्मामीटर बन गया। थर्मामीटर के स्केल की प्रिंटिंग को क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन। ये क्या होता है, कैलिब्रेटेड, आपका रूलर उसके ऊपर स्केल बना हुआ है ना फुटे के ऊपर, दैट इज कैलिब्रेटेड। सो कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इस तरह से होती है। अच्छा जी, खाकान साहब ये समझ में आ गया, पीपल ऑनलाइन, फातिमा, अली भट्ट, रेस्ट ऑफ यू, सबको समझ आ रहा है? मुझे ये बताएं फिर, ये मैंने 110 और -10 कहां से ले लिया, ये -10 ये कहां से आया, और ये 110 ये कहां से मिला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। वाटर तो 0 से नीचे जाता ही नहीं, फ्रीज हो गया तो फाइनल खत्म उसकी, और वो 100 से ऊपर वो बॉइलिंग के बाद ऊपर जाता ही नहीं। जी खाकान, इस दफा बेटा जितना गैप 100 में और 90 में था, इतना ही गैप हमने ऊपर ले लिया। लेट्स सपोज ये 90 था तो ये 110, कितनी स्पेस, रिलेटिव स्केल बना लिया, कंपेयर कर रहे, उतने डिविजन्स ऊपर ले गए, उतने डिविजन्स नीचे ले गए। हाँ? 90 कैसे निकाला? इधर से 50 निकाला था तुमने। सर भाई 50 तो हमने लाइक हाफ किया था ना उसको, और हाँ, 50 का 50 के बीच में, 100 और 50 के बीच में 5 पार्ट्स है कि नहीं है, 10 के, उतने 10 ऊपर ले जाओ। ठीक है, समझ आ रहा है? सो कंपैरेटिव स्केल हमने ऊपर बना दिया, उसको कंपेयर करके। तो इस तरह से हम काफी गेचमेंट मैंने कर दिया, आई एम श्योर आपको समझ तो आ रहा होगा। सो इन दिस वे वी कैलिब्रेट द थर्मोमीटर। कोई सवाल यहां पर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन? ऑलराइट, वी आर गोइंग टू डू द क्लिनिकल थर्मोमीटर। मैं इधर बनाने लगा हूं क्लिनिकल थर्मोमीटर। आई एम श्योर आप लोगों ने मर्करी का क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा होगा। ऑलराइट, ये इसका बोर और ये इसका, मैं रेड के साथ बना रहा हूं मर्करी। जी इसके बोर्ड के अंदर ना यहां पे करके एक हम्प सा होता है, एक थ्रेड सा, इस तरह का, बड़ा ही नरम सा। मैं इस पॉइंट को भी समझाता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए, बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 78।
जी कितने 78 78 क्या चीज बड़ी 78 को कोई स्केल है ना किलोग्राम सेंटीग्रेड और राइट इस्तफा का ख्याल है 78 डिग्री सेल्सियस खाकान आपका क्या ख्याल है 98 degree Fahrenheit. कितना बेटा 98 degrees Fahrenheit. ऑल राइट फातिमा आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ आंसर आएगा ऑल राइट जी खाकान ओ फ़ारेनहाइट की डिग्री नहीं होती सिर्फ फ़ारेनहाइट एफ होता है जी खाकान 37 डिग्री सेल्सियस मैंने इसलिए इस्तीफा लिखा था नॉर्मल कौन सा हाँ बाकी किसी भी इंसान का कोई भी टेम्परेचर हो सकते हैं जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो शायद टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देता है या your brain is boiling maybe the temperature rises but normal human being the normal 98 degrees Fahrenheit 98 Fahrenheit या 37 डिग्री सेल्सियस होता है 78 डिग्री सेल्सियस नहीं होता वरना तो चाय गर्म हो जाए सर पे रखने ऑलराइट अच्छा ये जो फीवर होता है ये इसकी रेंज क्या आती है 500 बस तो भी कभी बुखार में 500 कम ऑन अच्छा चलो ये मैं तुम्हारी फरमाइश पे 107 कर देता हूँ फ़ारेनहाइट ठीक है जो 104 पे होता है ना 104 पे तो आपको ठंडी पट्टियां शुरू कर देते हैं आइसिंग शुरू हो जाती है हाँ दिमाग को चढ़ जाता है बंदे को तो उससे नीचे नीचे रखते हैं 103 पे भी आइसिंग करते हैं ऑलराइट तुम तो ना बस मारोगे 500 नहीं है यार 98 फ़ारेनहाइट इससे ऊपर बुखार है आपको और 104 के बाद तो हालात बहुत कशीदा हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है ठीक है जी चलो ये 102 एंड सो ऑन वैसे ही मैंने बनाया ठीक है अच्छा आपने कभी इसमें देखे इधर एक ग्लास का ना आपको एक नाइफ सा नजर आता है इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ये चीज दिस वन दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन दिस इज कॉन्स्ट्रिक्शन ये क्या करती है मैं इसको जरा सा बड़ा करके इस पार्ट को दिखा रहा हूं आपको दिस इज थर्मोमीटर ये थर्मोमीटर का इस तरह से ये कंस्ट्रिक्शन और ये इसका बोर मैं बोर जो है वो ब्लैक से बना रहा हूं ओपनिंग जिसको मैं बोर कह रहा हूं दैट इज ओपनिंग यानी इस ओपनिंग के अंदर ये एक नाइफ नुमा चीज सी होती है ये क्या करती है इसमें से जब मरकरी राइस करता है ना बेटा देखो ये वन वे है मरकरी राइस करेगा आगे जाएगा और जब यहां से वापस आने की कोशिश करेगा तो इस नाइफ की वजह से इसका थ्रेड कट जाएगा ये तो वापस आ जाएगा ये वाला मरकरी इधर ही रहेगा तो इस कंस्ट्रक्शन का फायदा ये होता है कि जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर हमने लिया 107 डिग्री इस्तफा का ठीक है खुदाना खास्ता तो जैसे ही आपने यह टेकन दैट थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या है लो ठीक है तो दिस पार्ट ऑफ द मर्करी थ्रेड विल कम बैक ये तो आ जाएगा वापस ये इधर ही रहेगा क्योंकि ये थ्रेड ब्रेक कर देगा ठीक है दिस कंस्ट्रिक्शन विल ब्रेक द थ्रेड ये यहीं पर रुक जाएगा और ये वापस आ जाएगा और खुदा ना खास्ता किसी का बुखार है लेट्स सपोज 102 यहां तक ये राइज किया ठीक है अब आप देख के अब ये थ्रेड वापस कैसे जाएगा ये मर्करी वापस कैसे हम भेजें अगर हमने नई रीडिंग्स लेनी है तो हम इसको इस तरह से शेक करते हैं
तो शेक करने से स्मॉल ओपनिंग में से मर्करी वापस इधर आ जाती है, स्मॉल ओपनिंग में से वापस आती है बाय शेकिंग इट। ठीक है, इसलिए हम इसको शेक करते हैं। तो आज आपने घर में इफ यू गॉट द क्लिनिकल थर्मामीटर तो उसकी ये कंस्ट्रक्शन जरूर ऑब्जर्व करनी है ये वाली। ऑलराइट, देखना है। अच्छा जी, लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर अगर हमने इसमें से वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री मेजर किया है एंड अगेन वी वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड व्हिच इज एट द लोअर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर या थ्रेड नीचे कैसे लाएंगे? चेक करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर को, इसको कोल्ड वाटर में रख देंगे तो इसका थ्रेड नीचे आएगा। ठीक है, इसको शेक नहीं करते, इसमें कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो वो जस्ट प्लेस कोल्ड वाटर इन द बीकर और उसके अंदर हम इसको डिप कर दें तो इट्स थ्रेड कम्स डाउन एंड देन इट इज अगेन रेडी टू टेक द अदर मेजरमेंट्स। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में ये नहीं होता। वंस द थ्रेड इज गॉन टू दैट मेजरमेंट वो उधर ही रहता है जब तक unless that is taken so that the mercury which is in the board can come back to the, इस पार्ट को क्या कहते हैं? ये जो मर्करी रिजर्वॉयर है बल्ब, so that it can come back to the bulb. कोई क्वेश्चंस यहाँ पर? क्वेश्चंस ना पूछने का मतलब है यार तुम लोगों को बहुत समझ में आ रहा है या बिल्कुल नहीं है? जी, दोनों में से कौन सी चीज ठीक है? बाद वाली। इस दफा कुछ पूछ लो बेटा, ये फ्राइडे को जब टेस्ट आएगा ना इसका तो तुमने टेस्ट ही नहीं करना, आई नो। जी, उस्मान एंड खदीजा, फातिमा, अली भट्ट, कोई सवाल बेटा? यहाँ पर दो थर्मामीटर्स हमने डिस्कस किए, क्लिनिकल एंड दोनों आ गए बेटा? यस। किसी का कोई सवाल? फिर मेरा एक सवाल है, अभी पूछ लो। अच्छा चलो पहले पूछ लो। लेट्स सपोज वी हैव दिस laboratory thermometer, okay? This laboratory thermometer is giving us different readings. इस लिक्विड में डाला, एक थर्मामीटर डाला वो 75 डिग्रीज बता रहा था, दूसरा थर्मामीटर डिप किया इसी लिक्विड में, उसने 70 डिग्रीज बता रहा था, डिग्री सेल्सियस। वी हैव 3 स्केल्स। मैं इधर बता दूं, I did tell them in the beginning. One is called degree Celsius, the other is called Fahrenheit, and the third, which is SI unit for temperature, that is called Kelvin. Case level. ठीक है, अभी आगे इसकी डिस्कशन है। ओके, तो थर्मामीटर A, it is reading 75 degrees Celsius. Thermometer B, it is reading 70 degrees Celsius in the same liquid. Which one of them is correct? Or how we can check which one is correct? वाटर हीट हो रहा है। नहीं, ये 70 और 75 नहीं टेम्परेचर है, इस पे तो नहीं वो इवेपोरेट हो, वो बॉयल हुआ था। बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है। चलो हटा देते हैं ताकि मजीद ना हीट मिले इसको, ठीक है? उस्मान, यू टेल मी विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, थर्मामीटर ए और बी, और नन ऑफ देम इज करेक्ट। कैसे करेक्शन कर सकते हैं हम, कैसे इनको चेक कर सकते हैं? आपने स्टार्ट में बताया था कि वो एवरेज होती है, तो एवरेज है डिफरेंट हो, दोनों टेम्परेचर एवरेज हो। एक ही कंटेनर, एक ही बीकर में डिफरेंट टेम्परेचर से होंगे। बीकर या कंटेनर की एवरेज मेजर कर रहे हैं, तो एक एवरेज मेजर कर रहा है 75 डिग्री सेल्सियस, दूसरा मेजर कर रहा है उसी कंटेनर में। सिर्फ उसके उसने कोई पुरानी रीडिंग ली हो, उसी तरह उतारी ना और साथ ही से डाल दिया होगा।
थोड़े सा टाइम के बाद तो आपने सेटिंग बन जाती है ना उसकी। सर ये भी हो सकता है कि वो There is the difference of 5 degrees between thermometers. हमने लिक्विड भी चेंज करके देखे, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस 5 का ही रहा। Which one of them is correct? सर थर्मामीटर उस्मान, लो जी, अली साहब तो चले गए। उस्मान, जल्दी कर लो बेटा, टाइम थोड़ा है। उस्मान बताएगा हमें। All right, शाबाश, गुड बॉय। उसने कहा सर बी इज करेक्ट, वेरी गुड, आई एम ग्लैड दैट ही इज ब्रेव। उसने कह दिया बी ठीक है। हाँ जी खान, आपके ख्याल में? वेरी गुड, खान ने भी उस्मान को फॉलो किया है, इसे बी ठीक है जी। इस्तफा साइड नहीं सर, ए ठीक है। चलो, माय क्वेश्चन टू दीज brave students, what makes you think that A is correct or B is correct? क्या सोचा? दोनों ही गलत। खान has changed his mind, said both are wrong. दोनों wrong है, तो how we can check कि ये wrong है या थे? How did you claim that? सर एक नया थर्मामीटर लेकर एक नया थर्मामीटर लें, all right, तो उसको डिप करें। उसको डिप किया तो उसने 73 डिग्री सेल्सियस बताया। All right, one way of doing things, average accuracy. But इनमें से correct कौन सा? Correction of thermometer कैसे लिखेंगे? फातिमा बताएंगे। एक सेकंड, फातिमा। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं अपना प्लीज? जी बेटा, एक ही लिक्विड था, उसमें हमने बारी बारी 2 थर्मामीटर्स किए, भी डिप किए। वन थर्मामीटर read 75 डिग्री सेल्सियस, द अदर थर्मामीटर gave us the reading of 70 डिग्री सेल्सियस। Which one of them is correct? खान से तीसरा ले आए, तो तीसरे ने 73 डिग्री रीड किया। तीनों की रीडिंग्स डिफरेंट है, कौन सा वाला ठीक है? ए, बी और सी। और जो बाकी के दो रॉन्ग है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? I'm sure question is clear. सर ऐसा हो सकता है कि हम टेम्परेचर्स की एवरेज ले लें? एवरेज भी ले सकते हैं, वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्यूरेटली मेजर कर रहा है? और जो बाकी के दो हैं, खुदा ना खास्ता जो खराब है, उनको ठीक नहीं करना हमने। जिनकी रीडिंग सबसे क्लोज होंगी वो ज्यादा एक्यूरेट होंगे आई गेस। एक का 70 है, एक का 73 है, एक का 75 है। कौन सा क्लोज है? ऑलराइट, सोचो जी। खान, सर वो ठीक तो ऐसे कर सकते हैं कि वो बंद जो है पूरा पानी में डिप और कहीं टच ना करो। मेरी बात पूरा पानी में डिप है और कहीं टच नहीं कर रहा जी। इस्तेफा। सर तीनों ठीक है, तीनों ही ठीक है, आप भी ठीक है, आप भी ठीक है, आप भी ठीक है। छोड़ दे मुनाफिकत तू अपनी, छोड़ दे। सॉरी। अच्छा बेटा, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता होता है। मैंने आपको ऐसे ही लाइटर नोट के साथ मजाक किया बेटा। करेक्शन ऑफ थर्मामीटर के लिए स्केल की ये कैलिब्रेशन की फॉल्ट है। हाउ डू वी करेक्ट द कैलिब्रेशन? वी डिप द थर्मामीटर इन आईसी वाटर। आईसी वाटर में उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0। इन तीनों में से जिसका 0 पे होगा वो करेक्ट होएगा, और वहां पर जिसका जो भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होगा वो आप नोट कर लेंगे। वो एक्चुअल में से आप उतना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया? कल ये पूछूंगा मैं आपसे दोबारा जी। फातिमा, उस्मान एंड खदीजा बेटा, करेक्शन ऑफ कैलिब्रेशन समझ में आ रहा है? हाउ डू वी करेक्ट दैट? वी प्लेस द थर्मोमीटर इन आईसी वाटर टू मार्क द एग्जैक्ट लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और फिर we place it in the boiling water also to mark the upper fixed point. उससे हम कैलिब्रेशन की करेक्शन करते हैं। ऑलराइट, चलो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा रीड करना। टुमारो वी आर गोइंग टू सी अल्कोहल थर्मामीटर एंड मर्करी एंड अल्कोहल थर्मामीटर की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एज वेल एज इंडस्ट्रियल थर्मामीटर हम कल करेंगे। ओके बेटा, करवाएंगे बेटा प्रैक्टिस। एनी क्वेश्चंस?
Otherwise, we are done with the session. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Office, sir. Allah Hafiz, beta. Allah Hafiz.